Dear students, welcome you all. Today we will talk about a very important biomolecule found in our living system. And the name of that biomolecule is carbohydrate. We will study the structure and function of this biomolecule and the different aspects related with this biomolecule. In general, as we all know, that the basic and the smallest unit of life is the cell, and the major constituent, the element wise constituent, or we can say the major atoms which makes the life on this planet earth are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur. There are other elements as well: iron, potassium, sodium, chloride, nickel, molybdenum. But these elements are found in large amount. And together, all these six elements, they constitute almost 96% of dry weight of the cell. Dry weight means when there is no water. So all the biomolecules, and we know that there are four different kinds of biomolecules: carbohydrate, lipids, proteins, and nucleic acids. These are four different kinds of biomolecules. And of this six element, carbon is the most versatile element. Because it can form, carbon can easily form covalent bonds with carbon as well as other atoms. So many different kinds of organic compounds are possible due to carbon atom present. And carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, they are the major elements. They are found in almost all type of biomolecules, while carbohydrates are predominantly constitute of carbon, hydrogen and oxygen elements. So each biomolecule has its specific structure. The basic structure is the carbon skeleton, that is carbon-carbon covalent bond. So the basic structure lies on the carbon skeleton. The structure though varies, the function of these biomolecules also varies. So they are actually, these four are actually the structural as well as the functional products of the cell. The function of cell, the work of the cell totally depends upon the presence of these four molecules. So let us begin with carbohydrates. In simple words, we can say that carbohydrates are carbon, hydrogen,
and oxygen containing organic compounds. So predominantly they are carbon, hydrogen and oxygen containing organic compound. They are the most dominating, or we can say naturally occurring organic compounds in living system. If we compare between carbohydrate, proteins, lipids or nucleic acid, they are the most dominating, most predominantly found organic compound in the living system. They can be also called as hydrates of कार्बन. इनको हम कार्बन के हाइड्रेट्स भी कह सकते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बन हाइड्रेट. एंड द मोस्ट स्पेसिफिक and most well defined definition of carbohydrate is they are polyhydroxy aldehyde or ketone. Means they possess two different type of functional groups. One is aldehyde group, another is ketone group. Aldehyde means C H, this is R, any alkyl group, and O, that is aldehyde group. And in ketone R C R dash and double bond O, this is ketone. So they are actually the despite of their carbon skeleton, they also possess the aldehyde as well as ketose as a functional group in the molecule. As other biomolecules, carbohydrates can be grouped as monomers or they may be grouped as polymers. All the polymers are actually formed by the monomers. In case of carbohydrates, monosaccharides acts as monomers and polysaccharides acts as polymers. For example, glucose. So glucose is actually a monomer, and glucose when bind with the covalent bond known as glycosidic bond, it forms either glycogen, starch, cellulose. So starch, cellulose and glycogen all are polysaccharides. They are polymers of monosaccharide, that is glucose. So monosaccharides are the smallest unit of carbohydrates. So each monosaccharide can be described by its chemical formula known as empirical formula. The empirical formula for any carbohydrate, in particular monosaccharides, is CH2ON. This is the empirical formula. जहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न बनता है कि अगर हम एलिमेंट्स वाइज बात करें कि कौन सा एलिमेंट, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एलिमेंट्स हैं लिविंग सिस्टम के अंदर, तो इनमें भी सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फॉर्म में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? द मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट फाउंड इन लिविंग सिस्टम इज हाइड्रोजन. ये आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. वेल, इन दिस केस CH2ON, where important thing is that N should be always greater than 3 or equal to 3 but never less than 3. जहाँ पर N हमेशा 3
या तो 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। जैसे मान लिया n अगर 3 है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली C3H2 इंटू 3 H6 और O3 ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। इस तरह से C4 H8 O4 C5 H10 O5 C6 H12 O6, which you all know that this is the empirical formula of glucose. So वही ऑर्गेनिक कंपाउंड मोनोसेक्राइड अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा जो इस एम्पेरिकल फार्मूला में फिट बैठता है। अगर ये फार्मूला कुछ इस प्रकार हो C2H4O2 जैसे कि एसिटिक एसिड, this acetic acid is also carbon, hydrogen and oxygen containing compound, but it cannot be categorized as carbohydrate because the minimum number of atoms of each carbon, hydrogen, oxygen should never less than 3, या तो 3 होंगे या 3 से अधिक होंगे। जैसे 3 के केस में फॉर एग्जांपल दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, it is a monosaccharide, trisaccharide, glucose, erythrose, deoxyribose, it is a pentose sugar. So all monosaccharides follows or justify this empirical formula, though there are some exception. There are some monosaccharides which do not follow exactly this formula. The exceptions are deoxyribose sugar, the deoxyribose sugar whose empirical formula is C5H10 and O4, where but according to the empirical formula O must be 5 in this case because N is here 5, but the oxygen contains only 4 atoms. Rhamnohexose, it also rhamnohexose, it is a hexose sugar C6H12O5. So these are 2 exceptions. Ribose sugar, the empirical formula of ribose sugar is C5H10 and O5. It fits in this empirical formula. Now you are very well aware that ribose and deoxyribose sugar occurs in nucleic acid. Ribose sugar is found in ribonucleic acid, that is RNA, and deoxyribose sugar is found in DNA, that is deoxyribonucleic acid. Now the question arises, from where this deoxyribose sugar arises? During the course of evolution, when you will study about evolution, you will find that the first formed organism or living cells or living organism on this planet were having RNA as their genetic material. Later on, RNA gave rise to DNA. So that is called as RNA world, and now the primitive world was RNA world, because at that time the genetic material of the organism and these organisms were actually single cell organisms, the prokaryotic organism. So the primitive prokaryotic life was actually containing RNA as its genetic material. So that was called as RNA world. The RNA world slowly during the course of evolutionary process, they gave rise to DNA world. It means RNA gave rise to DNA. Two major changes
occurs during this period. One was conversion of ribose sugar into deoxyribose. And what was the change? One oxygen atom is liberated from ribose and actually it is now converted into deoxyribose sugar. And other important change was conversion of uracil into thymine. Well, when we will study molecular biology, I will give you the explanation or the reason behind these changes. Well, the reason behind these changes was actually the stability. The stability of DNA is more as compared to RNA. So, RNA as a genetic material is less stable as compared to DNA as a genetic material. So, slowly during the course of evolution, the RNA actually gets changed into DNA and DNA is more stable, and natural selection select this particular molecule as a genetic material. Let us begin with some important roles of carbohydrate inside the cell or in the living system. That is, we are talking about the function. So, an outline view of the functions, different kinds of functions performed by carbohydrates inside the cell. The most important function or the role for which it has been recognized is they are the immediate source of energy. You all know ग्लूकोज. अगर किसी सेल को ऊर्जा की आवश्यकता है तो सबसे पहले किस पे जाएगा कि ग्लूकोज पर जाता है. अगर ग्लूकोज इजीली अवेलेबल है तो इट विल प्रेफर ग्लूकोज मॉलिक्यूल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से वो क्या करेगा, एटीपी सिंथेसिस करेगा. एंड इट इज़ एविडेंट दैट इन living system that from bacteria to the complex eukaryotes, plants, complex plants or complex animal, every cell oxidizes or glucose glycolysis either by aerobic respiration or anaerobic in anaerobic condition. Aerobic condition means if oxygen is available in the cell, in absence of oxygen, the condition is known as anaerobic condition. Whatever may be the condition, glucose is converted into pyruvate during the process known as glycolysis. It is the first and most important biochemical process of cellular respiration, and as a result it generates ATP, and this ATP is then used by cell for different kinds of work. So glucose is readily available and can be easily degraded into pyruvate. Later on, pyruvate still possesses again an energy rich molecule and can be degraded further to carbon dioxide or water during aerobic condition. So it is the instant source of energy, and therefore this glycolysis is a universal process because this process is found in all type of living cell. So it is the most vital process, and this molecule is very important molecule. Secondly, carbohydrates also serve as reserve food or stored food.
जब कभी सेल को या ऑर्गेनिज्म को वेल फेड कंडीशन में हो तो जो एक्सेस फूड होता है वो उसको स्टोरेज फॉर्म में रखता है, जिसको हम रिजर्व फूड भी कहते हैं या स्टोर्ड फूड भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी स्टोर्ड फूड या रिजर्व फूड की तरह काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एनिमल्स, ग्लाइकोजन mainly the glycogens are mainly stored in liver cells. So glycogen is a polymer, and this glycogen is polymer of glucose. In case of plants, starch is a major reserve food, amylose or amylopectin. In case of microbes, some microbes, for example in yeast, even in lactobacillus, they store their excess glucose in the form of dextrin. These dextrin, starch and glycogen, they all are polymers of glucose. So beside the role in providing energy to the cell either instantly or in the form of reserve food, carbohydrate plays some other roles as well, and these are also important for the normal growth and functioning of the cell. The other important roles are as follows. Carbohydrate acts as precursor for synthesis of other organic compounds. जब हमने बात करी थी इनके एनर्जी रोल की कि जो कार्बोहाइड्रेट्स खास करके ग्लूकोज या ग्लाइकोजन या स्टार्च हैं जो कि एनर्जी डिमांड्स को पूरी करते हैं, तो एनर्जी डिमांड जिस बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू होती है उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस में जनरली क्या होता है कि एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल को हम डिग्रेड करते हैं और धीरे धीरे वो कन्वर्ट होता है इनटू एन एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल, and the energy stored in that molecule is then slowly been converted into ATP. The process is known as phosphorylation. The phosphorylation may be may be categorized as substrate level phosphorylation or oxidative phosphorylation. That is different aspect जो हम biological oxidation के अंदर study करेंगे. But that process is called as catabolic process. It doesn't mean that carbohydrates play only catabolic role inside the cell. They also play anabolic role inside the cell. Anabolic role means where small molecules forms larger molecules, they form a new molecule. So they act as precursors. Precursors का मतलब यहाँ पर ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो कार्बन स्केलेटन है, कार्बन स्केलेटन मीन्स CH2 and like this CH3, इनके पास OH होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है, तो इनका जो कार्बन स्केलेटन है वो कई सारे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बायोसिंथेसिस भी करता है. सो दे एक्ट एज प्रिकर्सर. प्रिकर्सर मीन्स वो मॉलिक्यूल जिसकी सबसे पहले शुरुआत होती है कि ये इनिशियल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज प्रिकर्सर मॉलिक्यूल. उस इनिशियल मॉलिक्यूल से अल्टीमेटली एक रिएक्शन होगी और रिएक्शन के से एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा. सो द प्रिकर्सर मीन्स दे एक्ट एज इनिशियल मॉलिक्यूल और दे कैन आल्सो एक्ट एज इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल आल्सो इन मेनी केसेस. So carbon skeleton, for example, carbon skeleton of many carbohydrates are used in synthesis of amino acids, and these amino acids are called as glucogenic amino acids. The carbon skeleton is used in synthesis of fatty acids, which is a very important integral component of lipids. The carbon skeleton is used in synthesis of nucleic acid.
RNA or DNA. And it is very common that you all know about the two sugars, that is ribose sugar and deoxyribose sugar, like this. Pentose sugar, this is ribose sugar. Means if there is 2' OH, it is ribose. So you will found the structure of ATP, GTP, CTP, UTP, TTP or DATP, DGTP, DCTP, DTTP, all contains a sugar molecule, either ribose sugar or deoxyribose sugar. So they are important component of nucleic acid. So these are some major synthetic roles of carbohydrate inside the cell. For example, ATP, the structure of ATP, the simple structure of ATP is just like this. This is base known as adenine. It is bicyclic in nature. It is linked with the C1 carbon of the sugar molecule, whether either it may be ribose or it may be deoxyribose, but this is the 9th nitrogen. So there is a bond between carbon 1 to 9th number of nitrogen, and here CH2, it is linked with 3 phosphate groups known as triphosphate. For example, if the 2' OH, 2' end possess H and OH, it means it is ribose sugar, and this structure is called as ATP, adenosine. The ribose sugar plus adenine is called as adenosine and triphosphate. If suppose this group contains only hydrogen, then this structure will be called as DATP, because now sugar is deoxyribose. The other important functions of carbohydrates are like, they also play some structural role in the cell. For example, in case of plant cell, cell wall, which is mainly made up of cellulose, hemicellulose. They are what? Polymer of glucose. They are polysaccharides, and they provide mechanical strength to the cell. They provide a particular shape to the cell. In animals, in particular insects, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स और कुछ नेमेटोड्स के अंदर, chitin is found in the exoskeleton. Chitin is actually a polymer of N-acetyl glucosamine. And this N-acetyl glucosamine is a modified monosaccharide. Chitin is also found in cell wall of fungi. So this is the structural role performed by carbohydrates.
They are important components of cell membranes. In form of glycoprotein and glycolipids. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के साथ साथ ये कोई सी भी सेल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, उनकी मेम्ब्रेन्स पर, कलेक्टिवली हम बायोमेम्ब्रेन कहें, उनकी मेम्ब्रेन्स पर भी या तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में या ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, और वहाँ पर कई विभिन्न प्रकार के ये फंक्शंस या कार्य कर सकते हैं. दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल, these glycoproteins or glycolipids which are present on plasma membrane of cell. For example, this is a cell. Say this is a cell. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो सकती है, उसका एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है. यहाँ पर दूसरी सेल्स भी हो सकती हैं. डिफरेंट सेल्स में भी प्रेजेंट. फॉर एग्जांपल कि दिस इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसका एन टर्मिनल एंड है और एक सी टर्मिनल एंड है, और यहाँ पर ये एक ओलिगोसैकेराइड है. से दिस इज एन ओलिगोसैकेराइड. ओलिगोसैकेराइड मीन्स इट इज मेड अप ऑफ अगेन मोनोसैकेराइड्स. जब 2 या 3 या 4 या 5 मोनोसैकेराइड आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हों, ज़्यादा बड़ी चेन नहीं, तो हम उसको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स. ज़्यादा 10 तक अपन कह सकते हैं कि 10 मोनोसैकेराइड है तो हम उसको ओलिगोसैकेराइड कहेंगे, और बड़ी चेन होगी तो हम उसको कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स. तो ओलिगोसैकेराइड्स आर फाउंड, दे मे बी फाउंड अटैच्ड विद द प्रोटीन, और कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिपिड बाइलेयर की बनी होती है. तो ये जो लिपिड्स हैं, इनसे भी ये ओलिगोसैकेराइड्स अटैच्ड हो सकते हैं. तो इनको तो हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड, और इनको कहेंगे अपन ग्लाइकोप्रोटीन्स. तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, दे प्ले वेरियस डिफरेंट डाइवर्स काइंड ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेल. जैसे कि सेल एडिशन, कि जब 2 सेल क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उनके बीच में नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शंस होता है, और इन मॉलिक्यूल्स को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल. तो ये सेल एडिशन मॉलिक्यूल में ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं. तो सेल को दूसरे सेल से बाइंड अप करके रखना ये ज़रूरी भी है फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट. अगर फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मान लिया एनिमल्स के अंदर ये सेल एडिशन की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाए तो सेल्स आर फ्री टू मूव, एंड दिस इज द कंडीशन. इन दिस कंडीशन सेल कैन मूव फ्रॉम, फॉर एग्जांपल अगर ये सेल कोई ट्रांसफॉर्म हो गई, अगर इसके अंदर कोई ट्यूमरोजेनिक या ट्यूमर लाइक कंडीशंस आ गई, इट कैन क्रिएट कैंसर, इट कैन कॉज कैंसर, तो इट कैन मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन अगर सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स नहीं हो तो, एंड कैन जनरेट ट्यूमर्स इन अदर रीजन्स एज वेल. इस तरीके से कई बार ये वर्क करती है एज एन एंटीजन और एज अ सेल सरफेस रिसेप्टर्स. कि यही ग्लाइकोप्रोटीन्स, मान लिया कि ये एक सेल है, इसके ऊपर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसको हम इस रिसेप्टर के फॉर्म में शो कर रहे हैं. दिस इज एक्चुअली ए ग्लाइकोप्रोटीन, और इस ग्लाइकोप्रोटीन पे कोई एक्सटर्नल मॉलिक्यूल जिसको हम कह रहे हैं सिग्नल मॉलिक्यूल, लिगेंड भी कह सकते हैं. जब लिगेंड इस पर बाइंड होगा तो ये जो रिसेप्टर है, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है, वह मैसेज अंदर कन्वे करेगा. प्रोसेस नोन एज सिग्नल ट्रांसडक्शन. And the cell will generate an appropriate response to this signal molecule.
सो सेल सरफेस यहाँ पर ये रिसेप्टर जो है उस सिग्नल को परसीव कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली इस सेल के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर रहा है। तो सेल्स दे एक्ट एज अ सेल सरफेस रिसेप्टर, दे आल्सो एक्ट एज अ सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। फर्दर when they are bounded on membrane in the form of glycoproteins or glycolipid, they also act as a cell antigen और cell surface receptors जो हैं cell surface molecules हैं, कई केसेस के अंदर एंटीजन की तरह भी वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल MHC, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, लगभग हर बॉडी सेल्स में MHC पाई जाती है। ये दो बड़ी क्लासेस की होती है, दे आर ऑफ टू ब्रॉड क्लासेस, वन इज क्लास 1 MHC, अनदर इज कॉल्ड एज क्लास 2 MHC, and these MHC present antigen to the cells related with immune system, which works in defense mechanism. Like for example, they may present antigen to T cells, and T cells then identifies that there is something wrong inside the cell which is presenting antigen. The antigen presenting cell then is acted upon by the T cells, and the T cell destroy the cell and ultimately destroy the antigen. So they are important part of body immune system as well. Again, a very good example of antigen is ABO blood group. The A antigen and the B antigen, the different kinds of blood groups in humans, for example A group, A blood group, B blood group, AB blood group and O group. It totally depends on the present or absence of एंटीजन, एंड द एंटीजन्स आर व्हाट, ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिसको हम इस टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो एक हमने आउटलाइन स्टडी किया है कि कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या डाइवर्स काइंड के टाइप्स के फंक्शंस हो सकते हैं सेल के अंदर, जैसे कि 4 बड़े फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं। पहला उसमें ये था कि सबसे मुख्य काम इनका, द मेन रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, और इंस्टेंट सोर्स एनर्जी का वो ग्लूकोज हो सकता है। दूसरा, वो स्टोर्ड फॉर्म में भी होते हैं, हालांकि रिजर्व फूड के लिए फैट्स को प्रेफर किया जाता है, उसका कारण अलग है। और तीसरा, वो एनाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर, कई सारी सिंथेटिक एक्टिविटीज़ के अंदर भी सिंथेटिक एक्टिविटीज़ के लिए प्रिकर्सर की तरह या इंटरमीडिएट कंपाउंड की तरह भी वो एक्ट करते हैं। और फाइनली वो कई सेल सरफेस पर अगर जब वो प्रोटीन्स या लिपिड से बंधे हुए होते हैं तो कई डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ में या फंक्शंस के अंदर वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, चाहे वो सेल एडिशन हो या फिर वो सेल सरफेस रिसेप्टर की तरह वर्क करें या फिर वो एक एंटीजन की तरह वर्क करें। अब अपन मूव करेंगे टूवर्ड्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होंगे, और फाइनली हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स, और उनके साथ साथ उनके जो फंक्शंस है वो भी हम स्टडी करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली कैटेगराइज किया जा सकता है एज मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। जो बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की वो है मोनोसैकेराइड, और इन्हीं मोनोसैकेराइड से ऑलिगोसैकेराइड्स बनते हैं और पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। सो मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट और द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, और इनकी एक विशेषता ये है कि अगर हम इन्हें, जैसे पॉलीसैकेराइड्स है,
फॉर एग्जांपल कि ये एक पॉलीसैकेराइड है अप टू n, इंडिविजुअली ये एक मोनोसैकेराइड है। मान लिया कि ये ग्लूकोज है और कई सारे ग्लूकोज, हो सकता है 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जिसको हम कह रहे हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो अगर हम पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करेंगे, तोड़ेंगे पानी की सहायता से, तो भी हमें क्या है, धीरे धीरे छोटे छोटे या तो डाइसैकेराइड्स या मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होंगे। ओलिगोसैकेराइड को तोड़ेंगे तो भी हमें मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होंगे। पर अगर आप मोनोसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करोगे तो उसके हाइड्रोलिसिस के पश्चात आपको कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। जबकि पॉलीसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करोगे तो यू विल फाइंड कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड और सम ओलिगोसैकेराइड। आप ओलिगोसैकेराइड्स को तोड़ोगे तो भी आपको हाइड्रोलाइसिस के बाद मोनोसैकेराइड्स एज ए यूनिट मिलेंगे। पर अगर आप किसी मोनोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करोगे तो आप उनको कोई जो बाद के जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे। मीन्स मोनोसैकेराइड क्या हुए, दे आर द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। मतलब आप ग्लूकोज को तोड़ करके कोई और कार्बोहाइड्रेट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ग्लूकोज टूटेगा तो फिर वो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेंगे। सो दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड हाउ दे आर द मोनोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड, द स्टीरियो आइसोमेरिक प्रॉपर्टीज, द ऑप्टिकल एक्टिविटीज़, द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स जिसको हम हेवर्ट प्रोजेक्शंस और या फिशर प्रोजेक्शंस कहते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं, कुछ ओलिगोसैकेराइड्स के हम एग्जांपल्स लेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला होता है। इस एम्पेरिकल फार्मूले को जो फुलफिल करेगा वो मोनोसैकेराइड कहलाएगा, जहाँ n 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। इनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, दे आर द स्मॉलेस्ट वन। नाउ मोनोसैकेराइड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस of number of carbon atoms present, कि हम इस मोनोसैकेराइड्स को कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कार्बन एटम की संख्या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है, तो उसके आधार पर हम उनका नामकरण करते हैं एज अ ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज शुगर्स। इनको क्या कहेंगे अपन, सिंपल शुगर्स। जैसे C3 ट्रायोज शुगर, C4 टेट्रोज शुगर, C5 पेंटोज शुगर, C6 हेक्सोज शुगर एंड C7 हेप्टोज शुगर। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है इनको क्लासीफाई करने का, वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। प्रेजेंट, जैसे कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम उसे कहेंगे, उस शुगर को नाम देंगे एल्डोस। अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है
तो उस शुगर को नाम दिया जाएगा कीटोस शुगर। एज वी ऑल नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोस। एंड व्हेन वी kept together both type of classification system, तो हम एक देखते हैं विद some examples कि किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप की शुगर्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, जब हम दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलें कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं और किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप उनमें उपस्थित है। और एक तरफ हम ले रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ पर C3, C4, C5, C6। तो क्लियर है, ये ट्रायोस शुगर है, ये टेट्रोस शुगर है, ये पेंटोस शुगर है और ये हेक्सोस शुगर है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं अलग अलग एग्जांपल, जैसे C3 में एल्डिहाइड वाला एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसे आप रेफरेंस मोनोसेक्राइड भी कहते हैं, और कीटोन ग्रुप वाला है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये इसका एग्जांपल है। So we are studying actually some selected examples. Tetrose में erythrose, erythrulose, पेंटोज में राइबोज डीऑक्सीरिबोज हो गए, और राइबुलोज जो है उसके पास कीटोन ग्रुप होगा। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ये सारी की सारी क्या है, हेक्सोस शुगर है, और इनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, सॉरी ग्लूकोज, गैलेक्टोज। जबकि फ्रुक्टोज जो है ये C6 शुगर है, हेक्सोस शुगर है, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। और अगर C7 हो तो अपन कहेंगे हेप्टोस शुगर, और सेडोहेप्टोज एंड सेडोहेप्टुलोज आर एग्जांपल्स ऑफ C7 sugar. So aldehyde sugars are actually called as aldose sugar, and the ketones containing sugars are called as ketose sugar. So these are the naming of carbohydrates on the basis of type of functional group present, either aldehyde group, then aldose sugar, ketone group, then ketose sugar, and on the basis of number of carbon atom present. For example, if there are 3 carbon, then it is triose sugar, 4 tetrose, 5 pentose, 6 hexose, and so on. Now let us have a look on our reference carbohydrate monosaccharide, which is glyceraldehyde, triose sugar having aldehyde as a functional group. Here
we will study stereoisomerism, a property commonly found in monosaccharides. Stereoisomerism means that monosaccharides can have many stereoisomers. And what do you mean by stereoisomers? Stereoisomers means molecules having same structural as well as empirical formula but varies in configuration, or we can say spatial arrangement of atoms. In the molecule. जैसे मान लिया कि एक ट्रायोस शुगर है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। उस मॉलिक्यूल के अंदर कई सारे एटम्स हैं और उनका एक सेट पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, जिसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहेंगे, और एम्पेरिकल फार्मूला में कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है, कितने ऑक्सीजन है। तो वो फार्मूला तो सेम है सब कुछ, बट थोड़ा सा क्या है कि कुछ एटम्स की जो स्पेस में जो पोजीशन है, अरेंजमेंट है, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो उस चीज़ को ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में रह सकते हैं, उनको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो हम उदाहरण के तौर पर ग्लिसरॉल्डिहाइड है या ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज शुगर का हम एग्जांपल लेते हुए इस स्टीरियो आइसोमरिक प्रॉपर्टी को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट how glyceraldehyde, how many stereoisomers of glyceraldehyde are possible. This is the structure of glyceraldehyde, और यहाँ पर इसको हम कह रहे हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। पहली बात, ये एक ट्रायोस शुगर है, दे आर 3 कार्बन एटम्स, 1 C1 C2 एंड C3। जैसा कि आप सब जानते हैं, केमिस्ट्री के अंदर एक नॉर्म है कि हमेशा अगर कार्बन एटम्स की नंबरिंग होती है तो वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट होती है। द फंक्शनल ग्रुप कार्बन इज व्हाट? दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप। सो दिस कार्बन इज द फंक्शनल ग्रुप कार्बन। तो यहाँ से हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे C1 C2 C3। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द सेंटर कार्बन विच इज द C2 कार्बन इज asymmetric carbon. This C2 carbon is asymmetric carbon. एक चीज़ जो बार बार आगे भी आएगी, वो अपन उसको मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है उसे हम यहाँ पर एनोमरिक कार्बन भी कहेंगे, क्योंकि एनोमर्स भी एक तरह के आइसोमर्स हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे। एनोमरिक कार्बन मीन्स फंक्शनल ग्रुप कार्बन। So, asymmetric carbon means a carbon which is surrounded by 4 different groups. So, the aldehyde group is different, this is the hydroxyl group, this is again CH2OH, a different group, and hydrogen. तो ये कार्बन जो है ये 4 विभिन्न प्रकार के समूह द्वारा के इसके चारों तरफ विभिन्न प्रकार के समूह हैं, तो हम इसे कहेंगे asymmetric कार्बन।
अगर समूह एक जैसे हो, जैसे मान लिया कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो तब हम इस C2 कार्बन को एसिमेट्रिक नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक कार्बन। और एक एसिमेट्रिक कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये है, द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन इज दैट कि वेन एवर एनी एसिमेट्रिक कार्बन इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, इट मीन्स दैट मॉलिक्यूल एग्जिबिट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास एक ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर किसी कोई मॉलिक्यूल जो सॉल्यूशन के अंदर है, और उस जैसे मान लिया कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल कौन सा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और जब इस ग्लिसरॉल्डिहाइड सॉल्यूशन पर प्लेन पोलराइज्ड, एक ही प्लेन में जो लाइट बीम है को हम स्ट्राइक करेंगे, जब उस पर प्लेन पोलराइज लाइट डाली जाएगी तो उस लाइट की दिशा चेंज हो जाएगी, या तो वो लेफ्ट की तरफ हो या राइट की तरफ हो, तो डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है, एसिमेट्रिक कार्बन पर। सो एसिमेट्रिक कार्बन possess ऑप्टिकल एक्टिविटी, और ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट। इसके लिए शब्द दिए गए हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, वो अपन देखेंगे। जैसे मान लिया कि ये एक ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसका जो स्टीरियो आइसोमर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, CHO CHOH एंड CH2OH। इसको हम कहेंगे L ग्लिसरॉल्डिहाइड। L ग्लिसरॉल्डिहाइड और D ग्लिसरॉल्डिहाइड में फ़र्क क्या है कि जो C2 कार्बन है उसमें अगर OH की पोजीशन राइट हैंड साइड पर है तो उसे हम कह रहे हैं D ग्लिसरॉल्डिहाइड या D फॉर्म ऑफ शुगर, या अगर OH की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हम उसे कहेंगे L फॉर्म ऑफ शुगर। L हियर एग्जिस्ट फॉर लीवो रोटेटरी एंड D हियर एग्जिस्ट फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। प्लस से भी डिनोट करते हैं और लीवो रोटेटरी को हम माइनस साइन से भी डिनोट करते हैं कभी कभी, कई बुक्स के अंदर इनको इस तरीके से भी डिनोट किया गया है। सो these L form of glyceraldehyde and D form of glyceraldehyde are what? Stereoisomers. Now how many, अब यहाँ आप देखने वाली बात क्या है कि दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, इसका भी C3H6O3 है, तो इधर इसका भी C3H6O3 है। सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस कुछ समूहों की पोजीशन स्पेस के अंदर डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर OH समूह की पोजीशन यहाँ पर राइट हैंड साइड में है और यहाँ पर OH ग्रुप की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जो दो अलग अलग फॉर्म में रह सकते हैं, खास करके समूह की पोजीशन के अकॉर्डिंगली, तो हम उन्हें कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। पर ऐसे कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए? तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है कि नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स, उसके लिए है फॉर्मूला 2⁻n। where